સૌને નમસ્કાર. મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટીના વિશેષ ઉપસ્થિતો, મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના સભ્યશ્રીઓ, સેનેટ સભ્યશ્રીઓ, અધ્યક્ષશ્રીઓ, એમકેબીયુ સમગ્ર પરિવાર ઉપરાંત આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. ભાવનગર માનનીય એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ સભ્ય શ્રી પ્રાધ્યાપક નીતિનભાઈ विनती करूँ कि तेओ आवी अने आ पदवीदान इस विश्वविद्यालय की विज्ञान संकाय से संबंधित पदवी या डिप्लोमा के लिए जिन्होंने संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्हें पदवी या डिप्लोमा के लिए योग्य पाया गया है और पदवीदान समारोह में श्री आचार्य देवरजी ना चरणों में वंदन करूं छूं. इंचार्ज वीसी श्री त्रिवेदी जी, माननीय मेयर डॉक्टर सिंह जी, भाव सिंह जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, જેનું નામ લેતા અંદરથી આપણા ગોવાડા બેઠા થઈ જાય એવા આપણા રાજવીઓ પ્રજાવત્સલ થઈ ગયા અને એમના પરિવારમાંથી આપણા યુવરાજ સમરસતા અને સમાનતા સાથે જેમનો વ્યવહાર સમગ્ર વિશ્વ ભારત વર્ષમાં પ્રચલિત છે, માત્ર પ્રજાને જેમના વંશજોએ કામ કર્યું છે એવા યુવા જયવંતસિંહજી, જયવીરસિંહજી, અમારા સૌના વડીલ ગુજરાતની અંદર અને આવા જિલ્લાની અંદર સિનિયર ધારાસભ્ય તરીકે વર્ષોથી રાજ્યમાં સેવા આપે છે એવા હવે તો ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકના ચેરમેન એવા આદરણીય કેશુભાઈ નાકરાણી, અગ્ર સચિવ હેજરજી, પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય બેન શ્રી ભાવરે, प्रमुख भाई श्री राजीभाई पंड्या અને આપણને માન આપીને આઈઆઈટીના વીસી ભાઈ શ્રી હર્ષલભાઈ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વીસી ભાઈ શ્રી ખૈલિયાજી, આંબેડકર યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ વીસી બેન શ્રી ઇન્દ્રિયા,
જીટીયુના વીસી નવીનભાઈ, નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના વીસીને આપણા ભાવનગરના વતનીભાઈ શ્રી ચેતનભાઈ, પૂર્વ વીસીઓ પણ દેખાય છે, ઝાલા સાહેબ, મિયાણી સાહેબ, કચ્છના વીસી પણ અહીંયા જાડેજા બેઠા છે. આપણા ભાવનગરના આપણે આટલા બધા વીસી આવ્યા છે, એમને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીને આપશો. આમંત્રિત ભાઈઓ બહેનો, કોલેજ સંચાલક મંડળના સૌ સાથીઓ, વિવિધ વિભાગના અધ્યક્ષીઓ, અલગ અલગ ક્ષેત્રમાંથી ચેમ્બર હોય, ડાયમંડ હોય, ઉદ્યોગ હોય, સૌ વેપારી મિત્રો અહીંયા દેખાય છે, નગરસેવકો, નગરસેવિકાઓ, કર્મચારીઓ, યુનિવર્સિટીના કોલેજના સૌ સ્ટાફ મિત્રો અને ઉપસ્થિત નવી જિંદગીના ગ્રંથ માંડવા માટે જઈ રહ્યા છે એવા સૌ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીનીઓ, ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, માનની મહામાનજી આખું ગુજરાતી સમજે છે, એટલે હિન્દી હું નથી બોલતો, અને પાકા ગુજરાતી બનીને ગુજરાતમાં કામ કરે છે, એનો પણ આપણા સૌ માટે આનંદની વાત. એક કુરુક્ષેત્રમાં ગુરુકુળ, એક એવું ગુરુકુળ ને એમાં પણ જે પ્રકારે કામ કરી રહ્યા છે અને આજે પણ જે પ્રકારે ત્યાં એ કામ જોઈ રહ્યા છે, આપણે સૌને એકવાર ત્યાં જઈએ તો મન થાય એ પ્રકારનો. અને આમ પણ વાલી તરીકેનો વાત્સલ્ય ભાવ સમગ્ર રાજ્યમાં મહામહિમજીનો મળી રહ્યો છે. હું આભાર માનું છું, આવકારું પણ છું એમને, કારણ કે વર્ચ્યુઅલી પણ ઉપસ્થિત રહી શક્યા હોય. પણ મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ, હું જે યુનિવર્સિટીમાં ભણ્યો છું એ યુનિવર્સિટીમાં મને ડિગ્રી મળી છે અને આપની ઉપસ્થિતિમાં એ ડિગ્રી વિદ્યાર્થીને આપવાનો મોકો મળતો હોય ત્યારે આપ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યો અને આગળ એને માન આપીને પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ભાવનગરની ખરા માટે આપણા માટે સૌભાગ્યની બાબત છે, કારણ કે સમગ્ર કાર્યક્રમ એમની ગરિમા, એમની ઉપસ્થિતિથી એની ઊંચાઈ વધી ગઈ હોય. માની મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ, માની ભૂપેન્દ્રભાઈ પણ આપણને ટાઈમ આપેલો, પણ માની ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહનો આજનો કાર્યક્રમ એ અચાનક બનવાથી એમની સાથે રહેવાનું હોવાથી એમણે શુભેચ્છાઓ આપી છે. અમારા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી ગોવિંદભાઈ ડિંડોર, એમના પરિવારમાં મામાના કુટુંબમાં કોઈ દુર્ઘટના કે દુઃખદ અવસાન થવાથી જે નથી રહી શક્યા, એમણે પણ શુભકામના આપી છે. હું અહીંયા ભાવનગર યુનિવર્સિટીમાં બેઠો હોય ત્યારે મને મારો ભૂતકાળ યાદ આવી જાય. જેમ ક્લાસરૂમમાં ભણતા હોઈએ અને મેદાનમાં જવાનું હોય તો મને લાગે છે કે અહીંયા સૌ વિવિધ સિન્ડિકેટ મેમ્બરો, એસીના મેમ્બરો સૌએ નક્કી કર્યું છે કે રૂમમાંથી મેદાનમાં લાવવા છે. પણ મને તો એવું લાગે છે કે હવે તમે પણ ક્લાસરૂમમાંથી સમાજ જીવનની વ્યવસ્થાના મેદાનમાં આવવાના છો, એટલે આપણા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડના મેદાનના કાર્યક્રમ એ યોજાવાનો છે અને ઘણી બધી વાર તમારે ઉભા રહેવાનું છે. કારણ કે આપણી જે કાર્યક્રમની વ્યવસ્થાઓ હોય છે અને જે એમની ગરિમા હોય છે એના માટે તેનો વિચાર કરતો હતો. પડઘા પડે છે કે બરોબર સંભળાય છે? તો સાઉન્ડ વાળાને કહીએ બરોબર આવે છે અવાજ? મામલીનજીને સાંભળવા આપવા માટે આવો. તો જે ડિગ્રી ધારકો છે ને ખાસ કરીને જે મેડલો લે છે, ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલો, એ વિદ્યાર્થી ઉભા હતા ત્યારે કામસો માં યોગિર્ગમય મૃત્યુર્માં અમૃતમય ઓમ શાંતિ. महाराजा कृष्ण कुमार जी भावनगर विश्वविद्यालय में इस 8वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित इसी विश्वविद्यालय के स्नातक, इसी धरती पर जिन्होंने विद्या अर्जन किया और आज सौभाग्य से गुजरात प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी जिनका संबोधन हम सब ने सुना है, ऐसे आदरणीय श्री जीतू भाई वघानी जी,
शिक्षा मंत्री गुजरात सरकार, आदरणीय श्रीमती कीर्ति बेन दानी धारिया जी, मेयर भावनगर, आदरणीय श्रीमती विभावरी बहन रवि जी, विधायक, आदरणीय श्री केशु भाई नाकरानी जी, विधायक, माननीय श्री जयवीर राज सिंह जी गोहिल युवराज, माननीय डॉक्टर श्री S.J. हैदर जी, अग्र सचिव शिक्षण विभाग, माननीय डॉक्टर M.M. त्रिवेदी जी कुलपति और मेरे दाएं ग्रुप में बैठे हुए प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज के विद्वान वाइस चांसलर महोदय, सबका अभिनंदन है। और उपस्थित वरिष्ठ शिक्षाविद, प्रबंध मंडल के सदस्यगण, विभिन्न संकायों के अध्यक्ष, प्राध्यापकगण, अभिभावकों, छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, अपने इस विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि भावनगर की वो भूमि जिसमें महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, जिनके बारे में अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए, पूरे गुजरात का ये सौभाग्य था कि भावनगर में एक ऐसे प्रेरणापूर्ण राजाओं का जन्म हुआ कि जिन्होंने अपनी प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करते हुए इस क्षेत्र के विकास में अपने समय में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किसानों की समृद्धि के लिए काम किया, आने वाली पीढ़ियों के निर्माण के लिए काम किया। और जब भारत आजाद हुआ तो पहले महाराजा कृष्ण सिंह जी थे जिन्होंने अपनी रियासत का विलय भारत में करके और देश के बाकी राजाओं को भी प्रेरणा देकर के देशभक्ति का, राष्ट्र भाव की मिसाल कायम की। ऐसे राजा कृष्ण सिंह जी और उनके पूर्वजों को मैं वंदन करता हूँ। और मुझे आज अपार खुशी है कि उस परिवार की परंपरा का पालन हमारे बीच में जयवीर राज सिंह जी वो भी उपस्थित हैं। आप उसी प्रकार के भाव के साथ उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। भाइयों बहनों, आज इस विश्वविद्यालय के मेरे सामने अनेक बेटा और बेटियां बैठे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया। विद्या पढ़ना कोई सामान्य कार्य नहीं होता, विद्या की तपस्या से आती है। जब तपस्वी गुरुजन और तपस्वी विद्यार्थी विद्या की उपासना करते हैं तभी विद्या का अर्जन होता है। मैं ऐसे हजारों छात्र छात्राओं को जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय अपने अपने क्षेत्र में विद्या अध्ययन के लिए लगाया और आज उसका प्रतिफल डिग्रियां आपको प्राप्त हो रही है। मैं अपनी ओर से, आपके गुरुजनों की ओर से उन सभी बेटे बेटियों को जिन्होंने आज पदवियां प्राप्त की हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
और कामना करता हूँ कि आप अपने भावी जीवन में बहुत सफल हों और जिस इच्छा को लेकर आपने ये तपस्या की, अध्ययन किया, पढ़ाई की, आप अपने परिवारों की उन्नति करें, समाज के निर्माण में योगदान दें और राष्ट्र के उत्थान में आपका योगदान होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा युवक राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जिस देश में युवा पीढ़ी संस्कारवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो और देश के प्रति समर्पण का भाव रखती हो, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं समझता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और इसी गुजरात की धरती के सुपूत जिन्होंने गुजरात का और भारत का नाम विश्व में विख्यात किया है, ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को संबोधित करते हैं कि आज दुनिया में यदि सबसे युवा देश कोई है तो भारत देश है, जिसकी 35% आबादी युवाओं की है। दुनिया के देश बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत युवा होता जा रहा है और ऐसे युवाओं के बीच में एक ऐसा ओजस्वी, तेजस्वी, इतना समर्पण से युक्त प्रधानमंत्री जिस देश को मिला हो, जो रात दिन राष्ट्र के लिए समर्पण करता हो और युवा पीढ़ी को जिसने आह्वान किया है, साइंस टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाओ, युवा शक्ति खेल में देश को आगे बढ़ाए, देश के समग्र विकास के लिए हमारी युवा शक्ति आगे आए, ये उनका आह्वान है। आज मेरे देश के युवा, आज मेरे देश की युवा बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। जहां भारत इस समय विकास के नए सोपान तय कर रहा है, विकास के रास्ते पर चल रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर देश बढ़ रहा है, ऐसे समय में हम शिक्षकों का कर्तव्य है और शिष्यों का कर्तव्य है कि मिलकर ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करें कि जो अपने इस राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके। भाइयों और बहनों, शिक्षा एक वो माध्यम है जो मानव को सही अर्थों में मनुष्य बनाती है। शिक्षित मानव यदि सभ्य है, शालीन है, संस्कारवान है, धर्मात्मा है, जितेंद्रिय है, परोपकारी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखता है और अपने परिवार के और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, ऐसा समाज ही जीवन में आगे बढ़ता है। आज देश और नई शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी 35 साल के बाद लेकर के आए, उन्होंने ये चिंतन दिया है कि हम युवा पीढ़ी को हर क्षेत्र में कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका भौतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्य कैसे विकसित हो सकते हैं, इस दिशा में नई शिक्षा नीति पर बड़ा बल दिया गया है। आज आने वाली पीढ़ियों के लिए नए नए चिंतन, नई नई सोच के साथ राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपने युवा बेटे और बेटियां जिन्होंने आज डिग्रियां प्राप्त की, उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में आज के दीक्षांत समारोह में इस देश में जो भाषण देकर के विदा किया जाता था, गुरु आपको अंतिम उपदेश दिया करते थे और वो अंतिम उपदेश क्या होता था? सत्यम व धर्मम च स्वाध्याय प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एक आदेश, एक उपदेश। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि लोकरम्।
प्यारे बेटे बेटियों, प्राचीन भारत में ऋषि मुनि लोग अपने गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो संदेश देकर समाज में भेजते थे, उनका उपदेश यही होता था कि इतने दिन तक तुमने जो विद्या पढ़ी है ये निरर्थक नहीं जानी चाहिए। अपितु तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में सदैव सत्य का आचरण करना है, धर्म का आचरण करना है, शिक्षा को निरंतर बढ़ाते रहना है और जो विद्या पढ़ी है उसको अपने तक नहीं अपितु लोगों के कल्याण के लिए समाज में बांटना है और समाज का और राष्ट्र का भला करना है। और ध्यान करना, अपने माता पिता के प्रति कभी अनादर का भाव न रखना। माता पिता जीवन में सबसे ज्यादा संतानों के लिए उपकार करते हैं। ऐसे माता पिता के लिए सदा सम्मान का भाव रखना, उनको वृद्धाश्रम में मत भेज देना, उनके लिए असम्मान का भाव मत प्रकट करना। और जिन गुरुजनों ने स्वयं तपस्या करके जिस विद्या को पाया और वो विद्या आपको दे दी, ऐसे गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव रखना। ये भारत की संस्कृति है, ये यहाँ की परंपरा। आज दुर्भाग्य है कि हम विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, इतने अल्ट्रा मॉडर्न बन रहे हैं कि अपनी परंपराएं छोड़ रहे हैं, अपनी वेशभूषा भूल चुके हैं, अपनी भाषा छोड़ चुके हैं। हम नकली जीवन जी रहे हैं और नकली जीवन कभी सुख देने वाला नहीं होता। हमारे ऋषियों का चिंतन बहुत गहन चिंतन था और उनका जीवन दर्शन बहुत ऊंचा जीवन दर्शन था। आज सारी दुनिया बहुत दुखी, परेशान, त्रस्त है, कष्ट में। जिन यूरोप के लोगों का हम अनुकरण कर रहे हैं, आज वो आध्यात्मिक रूप से खोखले हो चुके हैं। हम भारत के लोगों की ओर उनकी दृष्टि। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अपने गुरुजनों का सदा सम्मान का भाव रखना, अपने माता पिता बड़ों का आदर जीवन में करना और जीवन के अंदर जो विद्या पढ़ी है उसको देश समाज के कल्याण के लिए बांटना, ये आपके लिए आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है। और गुरुजन आपको कहते थे कि जहाँ भी रहो अपने इस शिक्षण संस्थान का, अपने इस विश्वविद्यालय का नाम नीचा न होने देना। कोई काम जीवन में ऐसा न करना जो अनिंद्य हो, जो निंदनीय हो, जो कष्ट देने वाला हो। सदैव श्रेष्ठ लोगों का संग करना, अच्छे लोगों का सत्संग करना, वो तुम्हें जीवन में प्रेरणा देगा। मैं इतना ही कहते हुए आप सब विद्यार्थियों से अंत में एक निवेदन करूंगा। आज भारत देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में हजारों कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक शपथ लें। हम सबको एक शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए भी कुछ करेंगे। जिस देश का हमने अन्न खाया, जिस देश का हमने पानी पिया, जिस देश की हमने हवा ली, जो राष्ट्र हमें सब कुछ दे रहा है, उसके उत्थान के लिए भी तो कुछ सोचें। और ऐसे समय पर हमें संकल्प लेकर के जाएं कि हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ जो भी सामाजिक चुनौतियाँ हैं उनके साथ संघर्ष करके नया रास्ता बनाएं। आप युवाओं में आप संकल्प लेकर के जाएं। अब आप जवान हो गए, डिग्रियाँ पूरी हो गई, आप गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करेंगे, तो आप एक संकल्प लें कि हम बेटा बेटी में कोई भेद नहीं करेंगे, भ्रूण हत्या जैसा पाप नहीं करेंगे, बेटियों को हम सदा सम्मान देंगे और उनका आदर करेंगे। ये आपने आज संकल्प लेकर के जाना चाहिए। दूसरा,
इस समय ग्लोबल वार्मिंग भयंकर त्रासदी बन चुकी है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। साइंटिस्ट कह रहे हैं जिन ग्लेशियरों को बनने में 2000 साल लगे थे, पिछले 25 साल में वो आधे पिघल चुके हैं। यदि यूं ही हम चलते रहे तो आने वाले 50 साल के बाद धरती पर कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सके। इतना गलत रास्ता दुनिया ने पकड़ा। इसके समाधान के लिए हम अभियान चलाएंगे। आपका जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, आपके माता पिता का जन्मदिन हो, तो लक्ष्य लो कि हम हर दिन जन्मदिन पर एक नया पेड़ लगाएंगे। नया पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ को पालेंगे। यदि सारा देश इस अभियान को चला दे तो हम कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग को आने से रोक सकते हैं। ये चुनौती, पानी का संकट चुनौती, इसका संरक्षण करेंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा परिवर्तन करती हैं। आप और हम एक ही लक्ष्य लेंगे कि अपने अपने घरों में कॉपी पेन लेकर एक दिन बैठे और ये लिखें कि मेरे घर में कौन सा सामान स्वदेशी है और कौन सा सामान विदेशी है। हम वो सामान घर में लाएंगे जो स्वदेशी कंपनियों का बना है, विदेशी कंपनी का माल हम प्रयोग नहीं करेंगे। यदि ये संकल्प आप ले लेते हैं तो भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत। आज हम विदेशी सामान खरीदते हैं, हमारा धन सारा विदेशों में जा रहा है और हम गरीब हो रहे हैं। आप सब बेटे और बेटी और बंधु जितने भी बैठे हैं, मैंने स्वयं राजभवन में आदेश जारी कर दिए कि इस राजभवन में आप आगे से कोई भी सामान विदेशी नहीं आएगा, सब सामान स्वदेशी ही देना है। यदि आप अपने अपने घरों में काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है। आत्मनिर्भरता का ये रास्ता बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात की एक पावन धरती और गुजरात के लोग बहुत धार्मिक हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत शालीन हैं, बहुत राष्ट्रभक्त हैं और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित लोग हैं। गुजरात ही जब पहल करेगा तो सारा देश आपसे प्रेरणा लेगा। माननीय कृषि मंत्री जी ने मेरे बारे में कहा कि मैंने यहाँ प्राकृतिक खेती का एक अभियान चलाया। मैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नर था, वहाँ भी मैंने अभियान चलाया क्योंकि मैं खुद जहाँ शिक्षक हूँ वहाँ मैं किसान भी हूँ। आप केवल मेरे को हल चलाने वाला ना समझें। मेरे यहाँ मैंने 4 गुरुकुल बनाए हरियाणा में, 4 गुरुकुल। उनमें एक बेटियों का गुरुकुल है और 3 बेटों के गुरुकुल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन दिनों वहाँ प्रवेश होता है। हमारे प्रवेश रोज नहीं होते, 2 दिन हम फिक्स करते हैं। मेरे पास एक गुरुकुल में 250 सीटें होती नए प्रवेश के लिए, कुल 250। और उसके लिए आप जानते कितने बालक आते हैं? इस साल 9,500 बच्चे, 250 बच्चों के प्रवेश के लिए 9,500 बच्चे परीक्षा में बैठे। इतना ऊंचा स्तर उन बच्चों का है। एक सिंगल बालक भी हमारे सेकंड डिवीजन नहीं आती। फर्स्ट डिवीजन भी 2-3 होते, नहीं तो टोटल संख्या का 60%, 90 से ऊपर अंक लेता। बाकी सब मेरिट में बच्चे होते हैं। इस एक साल में मेरे 12 बच्चे एनडीए में गए, +2 करते करते एनडीए में गए। 7 बच्चे आईआईटी में गए,
2 बच्चे पीएमटी में गए, एनआईटी में तो न जाने कितने जाते हैं। एक भी बच्चा बेरोजगार असफल नहीं होता। और वो करते क्या है? सवेरे 4 बजे उठते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, संध्या हवन करते हैं, 350 गाय उनका पवित्र दूध पीते हैं। 200 एकड़ हमारी जमीन है जिसमें प्राकृतिक खेती का करता हूँ, जहर नहीं डालता, उसी का गेहूं चावल दाल सब्जियां उन बच्चों को खिलाता हूँ। और उन्हीं खेतों से हमारी लोगों का पवित्र चारा होता है। और बच्चों को आप देखेंगे, वो सारे बच्चे इतने मजबूत हैं जितने जयवीराज सिंह जी यहाँ पर बैठे। हर बच्चा फौजी हम बनाते हैं, हर बच्चे को मजबूत बनाते हैं और उसी विचार से बनाते हैं। तो मैं जो निवेदन करता हूँ, आप में अनेक बेटे बेटियां खेलकूदों के लिए यहाँ पर, उन सबसे हमारा निवेदन है कि प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, हम सब लोग और आदरणीय जीतू भाई वाघानी का ये डिपार्टमेंट भी शिक्षा है, लेकिन ये हमसे भी ज्यादा कृषि की चिंता भी करते हैं और ये पाठ्यक्रम में भी इसको जोड़ने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ो। क्यों? इसलिए बढ़ो कि तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, पैंक्रियाज फेल हो रही है, लीवर किडनी खराब हो रही है। इसके पीछे कारण ये जहरीला भोजन है। आज हर व्यक्ति न चाहते भी जहर खा रहा है। यदि हम सब इस दिशा में काम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाव होगा, पानी का बचाव होगा, भूमि जहरीला होने से बचेगी, देशी गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और किसान की आय बढ़ेगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये बहुत आवश्यक मिशन है जिसे हमें गुजरात से चालू करके पूरे देश में चलाना है। अंत में मैं कुलपति महोदय को, उनकी पूरी टीम को और अपने पूरे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपति महोदयों को और आप सभी अभिभावकों, मित्रजनों को बहुत बहुत आज के आयोजन की बधाई देता हूँ और युवा बेटे बेटी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। સૌ મહેમાનો જે શહેરમાં જોડાયા છે મિત્રો ખૂબ વધાવી લઈએ। ત્યારબાદ જે યુનિવર્સિટી દ્વારા વિવિધ પ્રપોઝલો કરવામાં डिजास्टर मैनेजमेंटની આ ગ્રાન્ટ 2 કરોડ 60 લાખ રૂપિયા महाराजा कुमार सिंह जी और यूनिवर्सिटी ने प्राइज स्वीकारे। खूब खूब अभिनंदन दिवस सौનો આભાર। મિત્રો હવે જે વિદ્યાર્થીઓ મેડલ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે 7ના એક જૂથમાં આપણે એમને અહીંયા સ્ટેજ પર બોલાવીશું અને સ્ટેજ પરના તમામ 7 મહાનુભાવો છે એ આ વિદ્યાર્થીઓને એમને મેડલ અર્પણ કરશે। સૌથી પહેલા काकड़िया परम जगदीप secured highest marks in MBBS with surgery subject, निर्मलाबेन दोषी gold medal and HL India gold medal। वाघाणी दृष्टिबेन जितेंद्र कुमार secured highest
marks in MBBS with obstetrics and gynecology subject, late Dr. Srimati Tarulata Shah Gold Medal. Rajdan Prerna secured highest marks in MBBS final in female category, Dr. Srimati Meenakshi Bharat Gariwala Silver Medal. Saurav Kaur secured highest marks in MDMS, Dr. Sri Ela Bajaj Memorial Trust Gold Medal. Sri Vishwaram Jadashankar Trivedi Gold Medal. Dr. I.B. Patwari General Medicine Gold Medal. Sri Danya Prabhu secured highest marks in obstetrics and gynecology subject, Bhanuben Rambalal Payak Gold Medal. Modi Dhruti second highest marks in 4th PhD, Sri Sajjana Institute of Physiotherapy and Nursing Gold Medal Silver Medal. And Rathod TP secured highest marks in 4th PDS, B and Irani Gold Medal. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. વાઘેલા વિશાલ રમેશભાઈ secured highest marks in MSc Overall and MSc Mathematics. સોનાબેન મોનાબેન સુતરિયા ગોલ્ડ મેડલ અને જ્ઞાન મંજરી ગ્રુપ ઓફ કોલેજીસ ગોલ્ડ પ્લેટેડ સિલ્વર મેડલ. ચેલાની તુલસીબેન મહેશભાઈ secured highest marks in chemistry and organic chemistry. LB દવે gold plated silver medal. A ઠાકર ષષ્ઠીપૂર્તિ. થર્ડ ગ્રુપમાં ચૌહાણ નમ્રતા પ્રવીણભાઈ secured highest marks in MSc IT